بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کہو ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست و سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لوگوں، جان لو کہ تقوی ایک ایسا کڑا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، ایک ایسا گرہ ہے جو کھلتا نہیں، ایک ایسا لباس ہے جو بوسیدہ نہیں ہوتا، اور ایک ایسی رسی ہے جو پرانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے بندے کی حفاظت و صیانت کے لیے کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اے مومن مرد و عورت، جب ہم کتاب کائنات کی ورق گردانی کرتے ہیں، اس کے صفحات کو پلٹتے ہیں اور اس میں غور و تدبر کی نگاہ دوڑاتے ہیں تاکہ اس کی ایجادات و اختراعات اور اس کی جمالیات سے اپنی نگاہوں کو بھر سکیں، تو رب دو جہاں کے حسن صنعت اور جمال کاریگری کو دیکھ کر ہم ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف صنعت و بناوٹ کا کمال اور شکل و صورت کا حسن و جمال ہے، وہیں دوسری طرف بناوٹ میں دقت و باریکی بھی ہے۔ ایک دقیق و باریک نظام ہے جو صنعت و بناوٹ کے کمال و مضبوطی اور شکل و صورت کے حسن و جمال کو سموئے ہوئے ہے۔ دونوں بالکل یکساں ہیں، کوئی کسی پر فائق نہیں ہے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ صحیح فطرت کا حامل ایک انسان جب اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو آستانہ عبودیت و بندگی پر بے اختیار سجدے میں گر پڑتا ہے، کیونکہ اس عبادت کی طرف ربوبیت کی وہ دلیلیں بلا رہی ہیں جسے یہ حیرت انگیز کائنات بزبان حال پیش کر رہی ہے، اور جو اس وسیع و عریض کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری پڑی ہیں۔ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو بتلا رہی ہے کہ وہی ایک ہے۔ ہر نقل و حرکت اور سکون و اطمینان میں اللہ کی گواہی دینے والی کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اے مومن مرد و عورت، آپ ان دنوں باران رحمت اس کے فیض سے زمین پر لہلہاتے سبزازاروں اور حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گویا زمین بادل سے برسنے والے پانی سے نہانے کے بعد حسن و جمال کے کپڑے زیب تن کیے اترا رہی ہے۔ ایسے ہی خوبصورت مناظر کی کسی شاعر نے بڑی خوب تصویر کشی کی ہے کہ گلشن کے فرش رنگا رنگ ہو گئے ہیں، اس کے پھول مختلف شکل و صورت اور رنگ لے چکے ہیں، بعض بہت سفید، بعض سخت پیلا، بعض بہت نیلا اور بعض خالص سرخ۔ درختوں کے سائے خراما خراما آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹہنیاں ہواؤں کے ساتھ اٹھیلیاں کر رہی ہیں، اور اس زمین کو خود اپنے اوپر تعجب ہے کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے حالانکہ بادل مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ اے مومن مرد و عورت، بے شک آپ لوگ زمین کی زرخیزی میں اس کے بنجر ہونے کے بعد اور آسمان کے فیوز و برکات میں اس کے خشک ہونے کے بعد گھوم رہے ہیں۔ گویا اب آسمان کا چہرہ ترش روئی کے بعد کھل اٹھا ہے اور اس کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی دیکھ رہے ہیں۔ گویا زمین نے اپنا لباس بدل کر ہریالی کا لباس زیبتن کر لیا ہے اور پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی ہے، جس کی نرالی آواز آپ سن رہے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے کہ پھر تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ کہ زمین کو خشک ہونے کے بعد کس طرح سرسبز کرتا ہے۔ بے شک بارش بحکم الہی زمین کے اندر زندگی کی روح پھونک دیتی ہے، پھر اس کے الگ الگ حصوں میں ایسے دوڑتی ہے جیسے پانی درخت کی شاخوں میں اور روح جسموں میں، اور بارش ایسی روح ہے جو ہر چیز کو حیات بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ بارش برستی ہے تو زمین خوش ہوتی ہے، جس طرح سل کی بیماری میں مبتلا شخص اچھی خبر پا کر خوش ہوتا ہے، اور زمین بارش کو ایسے ہی خوش آمدید کہتی ہے جیسے محب اپنے محبوب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور باغیچہ بارش سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوست
दोस्त से मिलकर खुश होता है। बारिश बागीचे को सुबह भी खुशगवार बनाती है और शाम को भी उससे भरपूर सैराब करती है। यह एक अजीम नेमत है जिसमें बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मखलूकात पर उसको फजल व ihसान जाहिर होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, भला देखो तो सही वो पानी जो तुम पीते हो, क्या तुमने उसे बादल से उतारा है या हम उतारने वाले हैं। ज़ैद बिन खालिद जोहरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में हमें नमाज फज्र बारिश के बाद पढ़ाई जो रात में हुई थी। जब आप फारिग हो गए तो लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने कहा, मेरे बंदों में से कुछ ने आज मोमिन होकर सुबह की और कुछ ने काफिर होकर। जिसने ये कहा कि बारिश अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हुई, वो मेरे ऊपर ईमान रखने वाला हुआ और सितारों का मुनकिर हुआ। और जिसने कहा कि हम पर फला और फला निछत्तर के सबब बारिश हुई, वो मेरा मुनकिर हुआ और सितारों पर यकीन करने वाला हुआ। ये वो एहसान अजीम है जो आजिज कोता मखलूक को कादिर मुतलक व मुनइम हकीकी रब्बुल आलमीन के लिए हम्दो सना बयान करने पर मजबूर कर देता है। और वो है ही कामिल हम्दो सना और शुक्र का मुस्तहिक रब। किसी शायर का कौल है कि जब हम बेहतरीन तरीके से तेरी तारीफ बयान करें तो तू उस तारीफ का बिल्कुल मुस्तहिक होता है, बल्कि तेरी जात तो हमारी तारीफ से बढ़कर है। हमारी जुबान से तेरे अलावा किसी इंसान के लिए कोई भी तारीफी कलिमा निकले, उसमें हमारा मकसूद तो ही होता है। खुलासा ये कि बंदा रब के इनामात के बोझ से दबा हुआ है, एहसानात के समंदर में गर्क है और नेमतों के लिबास में मलबूस है। इन सब के बावजूद बंदा के लिए इतना ही काफी हो जाता है कि उसके दोनों होठ हम्दे बारी ताला में खिलते रहे, या उसका कलम उसकी खातिर चलता रहे, या दिल ही दिल में जिक्र इलाही में मशगूल रहे और ये इकरार करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुक्र और हम्द का हक अदा करने से आजिज है। जब अल्लाह की नेमतों पर मेरा शुक्र बजा लाना ही मुझ पर अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसका शुक्र बजा लाना वाजिब है, तो फिर बगैर उसके फजल के मुकम्मल शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है। खाह अय्याम दराज भी हो जाए और उम्र लंबी मिल जाए। बिला शुबह बारिश का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत, कुदरत, वहदानियत और बिला शिरकत गैरे तख्लीक और तदवीर की एक बड़ी दलील और अजीम निशानी है जो तौहीद उलूहियत और उबूदियत को मुस्तलज़म है। इरशाद बारी ताला है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के किसी को अल्लाह का शरीक मुकर्रर न करो। लिहाजा जो जात रुबूबियत में तन्हा वो एकता है, वही जात तन्हा इबादत की भी मुस्तहिक है। वो जात जिसने ये तन्हा ये सब पैदा किए वो मुशरिकों की तहमतों से पाक है। वो जात जो तन्हा तदबीर करता है वो मुशरिकों के शिर्क से बारी है। अल्लाह ताला हमारे और आप सब के लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए, हमें हर बिदात से महफूज रखे और हर फितने से बचाए। तकवा और अल्लाह से डरो खौफ को सामान निजात, ज़ख़ीरा आखिरत और दुखूल जन्नत का बाइस बनाए। मैंने जो कहा आपने सुना, मैं अल्लाह से अपने लिए और आप सबके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप सब भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो रुजू करने वालों को माफ करने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो हम्दो सताइश का मुस्तहिक व सजावार है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है और तख्लीक कायनात में उसका कोई शरीक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। जब तक बादल से बारिश बरसती रहे उस वक्त तक दुरूद व सलाम नाजिल होता रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, सहाबा इकराम पर और आपकी सदाकत व सच्चाई की गवाही देने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ मोमिन मर्द और औरत, बेशक आसमान की कहसाली, बंदों के कुनूत और शहरों के बेआबो गया होने के बाद बारिश के नुज़ूल में और लोगों और मुल्कों की खुशहाली व कहतज़दगी के बाद खुशहाली व शादाबी की आमद में उस आदमी के लिए वाज़ेह और खुली इबरत व नसीहत है जिसके दिल पर किसी तंगी या शिद्दत की वजह से नाउम्मीदी ने डेरे डाल दिए हो, जिसके क़ल्ब व जिगर को हुज़्न व मलाल ने बेकरार कर रखा हो और जिसके दिमाग पर गम व अंदोह की तारीकी छाई हुई हो। उसे चाहिए कि वो अपनी शिकायत अपने रब के दरबार में रखे, उसी के सामने अपनी हाजत व ज़रूरत पेश करे और ये यकीन रखे कि अल्लाह ताला पल भर में उसकी शिद्दत को फराखी में, सख्ती को आसानी में और तंगी को वसाअत में बदलने पर कादिर है। इरशाद बारी ताला है, वही तो है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत आम करता है, और वही कारसाज है और हम्द के लायक है। दूसरी जगह फरमाया, और तू देखता है कि जमीन बंजर और खुश्क है, फिर जब हम उस पर बारिश बरसाते हैं तो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि अल्लाह
अल्लाह ही हक है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है। सुनो, बेशक बारिश बरसने और कहत साली का खुशहाली में बदलने से एक मोमिन ये नसीहत हासिल करता है कि इस दुनिया की मुश्किलात दायमी नहीं है और यहाँ की खुशियाँ भी हमेशा नहीं रहेंगी, इसलिए उसकी रग़बत व चाहत दायमी नेमतों वाले घर के लिए बढ़ जाती है जिससे ज़वाल नहीं आएगा। ना वो परेशानियों पर गम करता है और ना ही वो मसाइब को अपने दिल में बड़ा समझता है। हमें हमारे रब ने उसकी याद दहानी अपने कलाम पाक में कराई है। इरशाद बारी ताला है, दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो ऐसे है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, जिससे जमीन की नबातात खूब घनी हो गई, जिससे इंसान भी खाते हैं और चौपाए भी, हत्ता कि जमीन अपनी बहार पर आ गई और खुशनुमा मालूम होने लगी और खेती के मालिकों को यकीन हो गया कि वो इस पैदावार से फायदा उठाने पर कादिर है। तो अचानक रात को या दिन को हमारा हुक्म यानी अजाब आ पहुंचा तो हमने उसको कटी हुई खेती की तरह बना दिया जैसे कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इसी तरह हम अपनी आयत उन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो कुछ गौर व फिक्र करते हैं। ऐ मोमिन मर्द औरत, आज के दिन कायनात के सबसे बेहतरीन फर्द और मखलूक के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन तुम्हारे दिनों में से अफजल दिन जुमा है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन फौत हुए, लिहाजा इस दिन आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद और सलाम भेजा करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी कुर्बत और नजदीकी का सबब बन जाए। ए अल्लाह, दुरूद सलाम और बरकतें नाजिल फरमा अगले और पिछले तमाम लोगों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके बकदर जो तेरी किताब ने शुमार कर रखा है या तेरे कलम ने तहरीर किया है और तेरे इल्म ने जिसे अपनी वसाअत में ले रखा है, हमेशा हमेशा क़यामत तक मुसलसल नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हिदायत याफ्ता कायदीन खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम से राजी हो जा और ताबईन इकराम और क़यामत तक आने वाले उनके पैरोकारों से भी राजी हो जा और उनके साथ साथ अपनी अफ़्व दरगुजर और रज़ामंदी की बारिश करते हुए हमसे भी राजी हो जा या अकरमुल अकरमीन। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, कुफ्र और अहले कुफ्र को जलील और रुस्वा फरमा और इस बाबरकत मुल्क को और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी मजबूत व महफूज और अमन व अमान वाला बना। ए जहानों के पालनहार, ए अल्लाह, हमारे पेशवा खातिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद को इस्लाम और मुसलमानों के इज्जत वाले और ऐसे कामों की तौफीक अता फरमा जिनमें बंदों और मुल्क के लिए दीन और दुनिया की भलाई हो। ऐ सबसे इज्जत वाले, ए अल्लाह, हर खैर के मामले में उनकी मदद फरमा और उन्हें इसकी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा जो हरमैन शरीफान का महज़न, मुसलमानों के दिलों का मरकज और हर शर से ईमान का मामन है। ए अल्लाह, इसके उलमा और अकीदे की हिफाजत फरमा, इसके मुक़द्दसात और हुर्मतों को महफूज फरमा, इस मुल्क के फौजियों और सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके फजल व करम को तलब करो, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करके उसकी नेमतों की हिफाजत करो, उससे चिमट करो और जम कर दुआ करो और इसका जिक्र करो। हमारा परवरदिगार इज्जत वाला है और उन तमाम बातों से पाक है जो काफिर उसकी शान में कहते हैं और रसूलों पर सलामती हो और सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है।